જે કાંઈ દુખાવા આ તે કાંઈ જે કાંઈ હતું બધું 20 જ દિવસની અંદર દૂર થઈ ગયું છે. નથી હું કોઈ મેડિસિન લેતી કે નથી હું કાંઈ ટ્રીટમેન્ટ લેતી, કશું જ નથી લેતી. વધારે મને પોતાને છે એ નરહરિભાઈ પંડ્યા ગઈમાં છે. જે એકાગ્ર મન રહે ને એ એનડીએસ થી બહુ જ સારું રહ્યું. कच्चा भोजन पक्का भोजन कच्चा, कच्चे पक्के का भेद जो समझे वो ही साधक सच्चा। तक थैया थैया ता થઈ। જો શરૂઆતથી કોઈ પણ રોગ ન હોય અને આ વસ્તુ જો આપણને મળી જાય તો એના જેવું તો કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ છે જ નહીં। મારા જન્મદાતા મારા મા બાપ હતા, પણ મારા જીવનદાતા જો કોઈ હોય તો એ આદરણીય બીવી ચૌહાણ સાહેબ છે। આને કોઈ ઈલાજ તરીકે તમે ન સ્વીકારશો, ઉપચાર તરીકે ન સ્વીકારશો, કોઈ થેરાપી તરીકે ન સ્વીકારશો। સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધતા જઈશું, પ્રયોગ કરતા જઈશું, તેમ આપણને ખબર પડશે। હાલ તો લગભગ આપણે બધા ભોજનના પરિવર્તન ઉપર જ ભાર મૂકીએ છીએ, પણ એ એક ગૌણ બાબત છે। અરે કાચું કાચું સૌ કહે પણ કાચું સમજે ના કોઈ। અરે એક વાર જો કાચું સમજો अरे रे तुम्हारे दर्द रहे ना को। નવી ભોજન પ્રથા છે તેનો પ્રચાર પ્રસાર દેશ વિદેશ અને દુનિયામાં થઈ રહ્યો છે, અને આમાં ઘણા મહત્વના વ્યક્તિઓ છે જે તેના પ્રસારનું કામ કરે છે। તેના કારણોસર આ જે વિદ્યા છે એ અનેક લોકો સુધી પહોંચી છે, અને એવા મહત્વના વ્યક્તિ એટલે આપણે કહી શકીએ કે મહેસાણાના નરહરિભાઈ પંડ્યા। તો આવો નરહરિભાઈ પંડ્યાને મળીએ અને મહત્વની વાતો વિશે ચર્ચા કરીએ। નરહરિભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। નમસ્કાર, પ્રણામ। પંડ્યાજી, આપણે જે નવી ભોજન પ્રથા છે એ ભોજન પ્રથાને કેટલા સમયથી આપ જોડાયેલા છો, એના પ્રચાર પ્રસાર વિશે આપને જે અનુભવ હોય એની થોડી માહિતી આપો। નવી ભોજન પ્રથા સાથે હું 10 જૂન 2014થી જોડાયેલો છું। અનેક બીમારીઓની વચ્ચે હું ઘેરાયેલો હતો, અને કંઈક કુદરતની ઈચ્છા હશે અને આ સિસ્ટમ મને મળી, અને પૂરી નિષ્ઠાથી હું 10 જૂન 2014થી જોડાયેલો છું। આની અંદર સતત લોકોની વચ્ચે રહું છું, શિબિરો મારી ચાલે છે, અને ફક્ત ગુજરાત નહીં, આઉટ ઓફ સ્ટેટ ભારતના અનેક રાજ્યોમાં પણ મારી શિબિરો ચાલુ હોય છે। અવારનવાર લોકો મને બોલાવે છે અને હું જઉં છું। પંડ્યાજી, આ જે નવી ભોજન પ્રથામાં આપે કીધું કે કોઈ પણ એક ડિસીઝના કારણે આપ આવ્યા હતા, તો શું આ રોગ હોય તો જ આ વિદ્યામાં આવવાનું હોય છે કે આમ કંઈ ન હોય તો પણ આ અભ્યાસ કરી શકે? ખરેખર તો આ એક એવી સિસ્ટમ છે કે રોગ હોય અને પછી આવીએ એના કરતાં જો શરૂઆતથી કોઈ પણ રોગ ન હોય અને આ વસ્તુ જો આપણને મળી જાય તો
એના જેવું તો કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ છે જ નહીં. કારણ કે રોગ હોય અને આવીએ અને કરીએ, એના કરતાં કોઈ પણ રોગ ન હોય અને જો આ સિસ્ટમમાં આવીએ તો ભવિષ્યમાં ક્યારેય કોઈને પણ કોઈ પણ રોગ થવાની શક્યતા હોતી નથી. બિલકુલ અવશ્ય માત્ર કોઈ રોગ ન થાય ક્યારેય. એટલે હું તો પ્રાર્થના કરું છું, લોકોને વિનંતી કરું છું કે યુવા વર્ગમાં આ સિસ્ટમનો પ્રચાર અને પ્રસાર યુવા વર્ગમાં વધારે થાય. એના કરતાં પણ આગળ વધીને હું એવું કહું, એઝ અ ટીચર, કારણ કે હું એક શિક્ષક રહેલો છું, જો આ પ્રથા શાળા લેવલે ચાલુ થાય, શાળાઓમાં આવા લેક્ચરો ગોઠવાય અને બાળકો સુધી આ વાત પહોંચે તો 100% આમાં ઘણી બધી આપણને સફળતા મળી શકે એવું છે. અને હું ઘણી શાળાઓમાં પણ પ્રોગ્રામ આપું છું. પંડ્યાજી, આપણે આ જે અત્યારે નવી ભોજન પ્રથા છે એમાં આપણે દુઆ છંદ લલકારતા પણ જોયા છે. તો આ શૈલીમાં કંઈક આ નવી ભોજન પ્રથાની કંઈક વાત જણાવો. નવી ભોજન પ્રથામાં લોકો એવું માને છે કે કાચું ખાઈએ. કાચું, લોકોને ખબર નથી કે કાચું કોને કહેવાય. ખરેખર જે કંઈ અહીંયા પીરસવામાં આવે છે અથવા જે વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ એ કાચું છે જ નહીં. સૂર્યની ગરમીથી, ચંદ્રની શીતળતાથી પાકી અને તૈયાર થઈને આપણી સામે આવે છે, એ જ સાચો આહાર છે. એ કાચું નથી, ખરેખર એ પાકું ભોજન છે. જે ભોજનને આપણે ચૂલા ઉપર ચડાવીએ છીએ, ગેસ ઉપર ચડાવીએ છીએ, 70, 80, 90, 100 ડિગ્રી ઉપર એને આપણે ગરમ કરીએ છીએ, ખરેખર એ કાચું ભોજન છે. એટલે હું ઘણી વખત મારા લેક્ચરોમાં પણ લોકોને કહેતો હોઉં છું કે કાચું ભોજન એ કાચું નથી, પાકું છે. કચ્ચા ભોજન પક્કા ભોજન, પક્કા ભોજન કચ્ચા, कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा. क्या? कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा. कच्चे पक्के का भेद जो समझे वो ही साधक सच्चा. तक थैया थैया ता થઈ. વાહ. અને આ જ વસ્તુને કંઈક દુઆ છંદમાં કંઈક અરે કાચું કાચું સૌ કહે પણ કાચું સમજે ના કોઈ. અરે એક વાર જો કાચું સમજો, અરે રે તુમારે દર્દ રહે ના કોઈ. વાહ વાહ વાહ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. જીવનમાં ક્યાં ક્યાં સુખનું મહત્વ છે? जो भी लोग हैं, एक डिमांड सबकी एक है. बाकी अलग अलग डिमांडें हो सकती है, मगर एक डिमांड जो है वो सबकी एक है, और वो है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी तंदुरुस्ती. तंदुरुस्ती हर किसी को चाहिए. बीमार रहना किसी को भी पसंद नहीं है. इंसान के पास चाहे लाखों करोड़ों रुपया क्यों ना हो, यदि उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, तो ये रुपये इनके कोई काम के नहीं है. कितना ही बड़ा मकान क्यों ना हो, कितना ही कीमती अपना पेट क्यों ना हो, मगर उसे उसमें नींद नहीं आ रही है, तो उनके लिए ये पेड़ कोई काम का नहीं है, ये मकान कोई काम का नहीं है, जहां हमें सुख न मिल रहा. तो सब लोगों की डिमांड, चाहे किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में रहता हो, सबकी डिमांड एक तो है कि निरोगी काया. वैसे भी हम बोलते हैं सबसे पहला सुख, यदि 4 सुख है, इसमें यदि सबसे पहला सुख कोई है तो वो है निरोगी काया. हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, सब चाहते हैं. दूसरा सुख है घर की भार्या, पत्नी, ये दूसरा सुख है. तीसरा सुख है पुत्र सुख. चौथा सुख है कोठिए जार, यानी
जरूरत के मुताबिक खाना पीना मिल जाए। ये 4 सुख है। इसमें पहला निरोगी काया को बताया है। કોઈ ઘર એવું નથી જ્યાં દવા આવતી ન હોય. કેમ? कोई घर ऐसा नहीं है जो दवाई ना आती हो। क्यों? कभी इसके बारे में हम सोचते नहीं, हम बीमार क्यों हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तुरंत हम हॉस्पिटल जाते हैं या नेचुरोपैथी में जाते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, जहां भी हमें तंदुरुस्ती मिले वहां पे हम चले जाते हैं। सोचते नहीं कि बीमारी आई क्यों, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। देखें, पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां। इसमें से जो पशु पक्षी 100% नेचर के सहारे यानी कुदरत के सहारे रहते हैं, क्या इनमें कोई बीमारी हमें देखने को मिलती है? हाँ, बताओ, है कोई बीमार वहां? वहां कोई बीमार नहीं है। जो लोग 100% कुदरत के सहारे जी रहे हैं उनमें कोई बीमारी नहीं है। और यहां चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, खुद डॉक्टर क्यों ना हो, डॉक्टर का बाप क्यों ना हो, वैज्ञानिक क्यों ना हो, नेता अभिनेता चाहे कोई भी हो, यहां बीमारियां हैं, सब बीमार हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन से लेके PHC का प्यून तक सब लोग दवाइयां खा रहे हैं, सब लोग दवाइयां खा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? दुनिया के लोगों की हेल्थ की केयर रखना, सब लोग तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे, ये इनका काम है। और इसके लिए डे नाइट ये लोग काम कर रहे हैं। हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में देश में नए नए डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में। हर साल नई नई हॉस्पिटलें, मेडिकल कॉलेजें हर साल नई नई बन रही है। इतने डॉक्टर, इतनी हॉस्पिटलें, इतनी मेडिकल कॉलेजें जब हो रही है, खुल रही है, डॉक्टर बन रहे हैं, बीमारियां कम होनी चाहिए या बढ़ती चाहिए? बताओ, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। क्या ख्याल है आपका, कम हो रही है या बढ़ रही है? क्यों? तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटलें बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी कि गलत दिशा। जो काम कर रहे हैं सब लोग गलत दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि यहां कोई घर ऐसा नहीं है जहां दवाई ना आए। क्यों? इतनी सारी थेरापियां होने के बावजूद, इतने सारे हॉस्पिटल होने के बावजूद, इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद आए दिन नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही है, नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही है। और आगे लाइन में अभी तो बड़ी लंबी लाइन लगी है पीछे, कई नए नए रोग इंतजार करके बैठे हैं जिसके नाम का हमें अभी तक पता भी नहीं है। कई नए रोग इंतजार करके बैठे हैं। यदि
सचेत नहीं हुए हम, आज कोई घर खाली नहीं है जहां दवाई नहीं आती है। यदि जागरूक नहीं हुए, कल कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो बीमार ना होगा, दवाई ना ले रहा होगा, कोई इंसान बाकी नहीं होगा। फैसला हमें करना है, क्या हमें बीमार ही रहना है या हमें स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है। फैसला हमें करना है। तो आइए जानते हैं हम स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। जो भी दवाइयां चालू है उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और आने वाली लाइफ में जब तक हम जिंदा हैं तब तक कभी कोई बीमारी हमें छू न सके, टच न कर सके, हो न सके, ऐसा जीवन जिए। तो दोस्तों देखो, रोग हजारों हैं, हजारों, हमें पता नहीं है हमें क्या हुआ, कौन सा रोग हुआ। हमें तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहां पे हमारे पर परीक्षण किया जाता है, लेबोरेटरी करवाई जाती है। लेबोरेटरी में जो कुछ रिजल्ट आता है वो दर्द हमें पकड़ाया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट हम पे की जाती है। मानो लेबोरेटरी हुई, उसमें शुगर ज्यादा है, तो डॉक्टर बोलेंगे कि अरे आपकी तो शुगर ज्यादा है, और सुनते ही हम डर जाते हैं क्योंकि शुगर वाले पेशेंटों को हमने देखा है वो कितने परेशान हो रहे हैं, देखा है हमने कितने परेशान हैं। तुरंत हम डर जाते हैं। क्या बात करते हो डॉक्टर साहब, शुगर है, कितनी है? तो बोले इतनी, और भी डर जाते हैं। डॉक्टर बोलेंगे डरने की कोई बात नहीं है, क्या करना पड़ेगा? तो बोले कोई बात नहीं, बस मैं टैबलेट देता हूं, आप लेते रहो, शुगर कंट्रोल में रहेगी। हम पूछेंगे टैबलेट्स कब तक लेनी पड़ेगी, क्या जवाब मिलेगा? जिंदगी भर का, जिंदगी भर, लाइफ टाइम। फिर दूसरा सवाल हम करेंगे खाने के बारे में, तो डॉक्टर साहब वो हमें बताएंगे आज तक जो सारी चीजें हमें पसंद थी, हाँ, वो कैंसर जिसकी ओर हम देखते भी नहीं थे, वो खाने के लिए देंगे। आज तक हम वो करते आए, टाइम टू टाइम दवाई लेते रहे, जो खाने के लिए मना किया था वो नहीं खा रहे हैं, जो खाने के लिए बोला था वही खा रहे हैं। कृपया एक केस मुझे बताओ कि डॉक्टर की टाइम टू टाइम गोली लेने से, डॉक्टर ने बताया हुआ आहार लेने से किसी का भी शुगर क्योर हुआ हो और दवाई बंद हुई हो, कोई एक केस मुझे बता सकता है? कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। सबकी दवाइयां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा बीपी का है, बिल्कुल ऐसा बीपी का है। किसी का बीपी क्योर हुआ क्या? हाँ, सालों से गोली ले रहे हैं, सालों से ले रहे हैं, डॉक्टर के बताए मुझे आहार ले रहे हैं, किसी का बीपी क्योर हुआ क्या? गोली बंद हुई क्या? कभी नहीं। यहां पहले दिन से बंद हो गई, हाँ, यहां पहले ही दिन से बंद हो गई, अभी तो कुछ खिलाया ही नहीं, हाँ, अभी तो कुछ खिलाया ही नहीं, लेक्चर सुनते ही दवाई बंद कर दी, आज तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों ऐसा? क्यों यहां क्यों ऐसा रिजल्ट है, वहां क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है?
નવી ભોજન પ્રથા છે તેની એટલી બધી સરળ વાતો છે જે દરેકને સમજાઈ જાય તેવી છે. અને આપણે એના ઘણા એપિસોડ બનાવ્યા છે. આપણે ઘણા બધા આગળ પણ અલગ અલગ વિષયોની ચર્ચા કરવાના છે. પરંતુ આ નવી ભોજન પ્રથા છે તે ઘણાને એવું થાય છે કે આટલું બધી સરળતા હોય, આટલી બધી સરળ રીતે આ વિદ્યાનો અભ્યાસ થઈ શકે. કારણ કે આપણે કેવું છે કે આપણને એક હેબિટ પડી ગઈ છે કે ટ્રીટમેન્ટ આપણને કોઈ ડૉક્ટર કરે, પછી આપણે એને એના પ્રમાણે દવા લઈએ, અથવા તો જે આપણું એક્ઝામિનેશન થાય એમાં એ પ્રમાણે આપણે ઓપરેશન કરાવીએ કે સર્જરી થાય, એક્સરે કરાવીએ. આ રીતે જ આપણે સારા થઈ શકીએ એક હેબિટ બની ગઈ છે. અને એના કારણોસર ઘણા લોકોને એ પણ ડાયજેસ્ટ નથી થઈ શકતું કે આટલી સરળતાથી કોઈ સારા થઈ શકે. તો તે વિપરીત પણ તેમનું માઇન્ડ ચાલી રહ્યું છે. એટલે કે પોઝિટિવ વાત છે તે રીતે નેગેટિવિટી પણ ઘણી આની ફેલાઈ રહી છે. અમારો પ્રયાસ છે કે તમે આને સરસ રીતે સમજો, સરળતાથી સમજો. કારણ કે આપણે આ જે એપિસોડ જેટલા બનાવ્યા છે તેમાં અનેક સાધકોનો અનુભવ આમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. કારણ કે જે પણ અહીંયા જે પ્રચારક છે તે માહિતી આપે છે તેની સાથે આપણે સંમત છીએ એવું નથી વાત. અને તમે પણ સંમત ન થાઓ. તમે પહેલાં શું કરો કે અનુભવથી ચકાસી જુઓ, તમને યોગ્ય લાગે તો સાજા થાઓ. કારણ કે આપણે ખબર છે ને કે કોઈ વસ્તુ આપણને સરળતાથી એમને મળી જાય તો આપણને તેની વેલ્યુ નથી, પરંતુ તેની બહુ મોટી કોસ્ટ ચૂકવવી અને આપણે એવા વ્યક્તિ પાસે જઈએ અને કન્સલ્ટ કરીને સજેશન આપે તો જ આપણને સારા અને સાજા થઈ. એ હેબિટ છે તેમાંથી બહાર આવો અને અનેક સાધકોના અનુભવ છે તે જુઓ. તે પણ એક વાસ્તવિકતા છે કે અનેક લોકો વગર દવાએ, વગર ઓપરેશને સાજા થઈ રહ્યા છે. તો તમે આ છે અનુભવ કરો અને એ યોગ્ય લાગે તો તે સ્વીકારીને તમે આગળ વધો તેવી વિનંતી છે. પંડ્યાજી, આ જે વિદ્યા છે નવી ભોજન પ્રથા, ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ, એનો કેટલા સમયથી આપ અભ્યાસ કરો છો અને જે સાધકો આવે છે એના કેવા? હું 10 જૂન 2014ના દિવસે આ સિસ્ટમ મને મળી. આદરણીય મારા જન્મદાતા મારા મા બાપ હતા, પણ મારા જીવનદાતા જો કોઈ હોય તો એ આદરણીય બીવી ચૌહાણ સાહેબ છે. એમના દ્વારા મને આ સિસ્ટમ મળી 10 જૂન 2014. અને પહેલા જ દિવસથી મને આ આખી વસ્તુનો ખ્યાલ આવી ગયો અને પૂરી નિષ્ઠાથી હું એની સાથે જોડાયો. મને જે પ્રોબ્લેમો હતા, મારો હાર્ટ ટોટલ બ્લોક હતો, મારા ગોલ્ડ બ્લેડરમાં સ્ટોન હોવાને, પથ્થરીઓ હોવાના કારણે ફાટી ગયું હતું, પાકી ગયું હતું, ઇમરજન્સી બાયપાસ કરવાનું હતું. બંને ઢીંચણમાં એટલી બધી તકલીફ હતી. છેલ્લા 14 વર્ષથી હું ઊભા સંડાસ જતો હતો. આ અનેક પ્રોબ્લેમો, શ્વાસની તકલીફ હતી, બીપીની તકલીફ હતી, આવી અનેક તકલીફો હતી. આમાંથી હું બહુ ઓછા સમયમાં કહું તો પણ ચાલે કે પૂરી નિષ્ઠાથી મેં આ સિસ્ટમને અપનાવી તો બહુ ઓછા સમયમાં હું આમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. આજે કોઈ પણ દવા મારી જોડે નથી, કોઈ પણ દવા વગર હું રહું છું. અને ધીમે ધીમે જેમ લોકોને ખ્યાલ આવતો ગયો કે લોકો મારી સાથે જોડાતા ગયા. આજે લગભગ ફક્ત ભારત નહીં, ભારત બહાર 18 દેશોના લોકો મારી સાથે જોડાયેલા છે. અને ભારતમાં કોઈ રાજ્ય બાકી નથી જે મારી સાથે જોડાયેલું ના હોય. વોટ્સએપમાં આના વિશે ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમના લગભગ 135 કરતાં વધારે ગ્રુપો હું હેન્ડલ કરું છું. અને રોજ સવારમાં લોકોને કંઈક ને કંઈક નવા સંદેશાઓ મોકલાવું છું. આ રીતે લાખો નહીં પણ હું એમ કહું કે કરોડો લોકોને સાથે હું સંકળાયેલો છું. મારા ઘેર પણ હું જ્યારે ફ્રી હોઉં ત્યારે ઘેર પણ કેટલાય લોકો મને મળવા આવે છે, પોતાના દર્દો વિશે વાત કરે છે. સિસ્ટમ હું એમને સમજાવું છું. 1 પણ રૂપિયો મારો ચાર્જ નથી. લોકોને હું કોઈ પણ આની પ્રોડક્ટ આપતો નથી. ફક્ત ને ફક્ત સંજીવની પાત્ર અને જ્યુસ માટેની જે છલની ગરણો આવે એ જ 2 વસ્તુ અને ગુરુજીની જે ચોપડીઓ બુકો છે એ બુકોનું વિતરણ કરું છું. બાકી કોઈ વસ્તુનું હું વિતરણ કરતો નથી, કારણ કે આમાં બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર પણ પડતી નથી. કોઈ પણ પાવડર કે કોઈ પણ બીજા પ્રોડક્ટ, આની કોઈ પ્રોડક્ટ જ નથી કે કોઈ પાવડર નથી. કુદરતી ગોડ મેડ ફૂડ, ભગવાને આપણા માટે જે આહાર બનાવ્યો છે એ જ આહાર આની અંદર લેવાનો છે. સિઝનલ, રિજનલ, રિજિયોનલ અને ઓરિજિનલ, આના ઉપર આખી સિસ્ટમ ચાલે છે. એટલે ખરેખર ખૂબ સારી સિસ્ટમ છે, ખૂબ સારી આ પ્રથા છે. કોઈ પણ રોગમાંથી કોઈ પણ લોકો આસાનીથી આમાંથી દૂર થઈ શકે છે. વાહ વાહ પંડ્યાજી, ખૂબ સારી આપે માહિતી આપી. પણ અને આપનું જે એક
વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે એ ગ્રુપમાં હું પણ છું, તો હું એવું જોઉં છું કે તમે 3-4 વાગે પણ મેસેજ હા. આપો, તો તમારી ડેલી શેડ્યુલ કેવું હોય? મારો લગભગ સવારે 3:30-4 વાગે ઉઠવાનો મારો ટાઈમ છે. રાત્રે ભલે હું ગમે એટલા વાગે સૂતો હોઉં, કારણ કે મારી સાથે આઉટ ઓફ કન્ટ્રીઝથી પણ ઘણા લોકો જોડાયેલા છે. ઘણી વખત મને રાતના 1 વાગે, 1:30 વાગે, 2 વાગ્યા સુધી પણ ઊંઘવા નથી મળતું. ભલે હું રાતના 2 વાગે ઊંઘ્યો હોઉં તો પણ 3:30 થી 4ના ગાળામાં હું જાગી જાઉં છું. આ કુદરતી છે, મારે કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. પરમાત્માને હું કહીને ઊંઘું છું કે મારે આટલા વાગે ઉઠવાનું છે, એટલે પરમાત્મા મને જગાડી દે છે, એટલે હું જાગી જાઉં છું. જાગ્યા પછી લોકોના કોઈ મેસેજો હોય એના જવાબો આપું છું. અને બાકી રોજ ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ વિશે કોઈ ને કોઈ નવો એક મેસેજ મોકલતો રહું છું. લોકોના સંદેશ, લોકો મારી સાથે જોડાયેલા રહે, આ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા રહે, એટલે નવા મેસેજો રોજ લોકોને આપું છું. અને સવારે 3:30-4 વાગે જાગ્યા પછી લગભગ સાંજે 4 વાગ્યા સુધી મારો ઉપવાસ રહે છે, ફાસ્ટિંગ. એટલે 12 કલાકના મારા ઉપવાસ રહે છે. કારણ કે આ સિસ્ટમમાં મેઇન વસ્તુ જે છે, લંઘનમ પરમ ઔષધમ. કોઈ પણ રોગમાંથી તમારે મુક્ત થવું હોય તો ઉપવાસ જેવો કોઈ ઈલાજ નથી. એટલે 12 કલાકના મારા હંમેશના માટે ઉપવાસ રહે છે. 12 કલાકના ઉપવાસ પછી હું ગ્રીન જ્યુસ પીઉં છું. એના પછી જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે સિઝનેબલ જે કાંઈ ફ્રૂટ્સ હોય એ ખાઈ અને મારું ડિનર પૂરું કરું છું. પછી કંઈ લેવાની ઈચ્છા થતી નથી. આ પ્રમાણે મારું શેડ્યુલ ચાલે છે. અલગ અલગ થેરાપી કેમ રોગ મટાડી શકતી નથી? हम हमारा ताला लॉक गलत चाबी से खोलेंगे तो क्या होगा? ताला खुलेगा? कभी भी नहीं खुलेगा. या तो चाबी बिगड़ जाएगी या लॉक भी बिगड़ सकता है. हाँ, सही चाबी लगेगी तभी ये ताला खुल सकता है. और हम लोग आज तक क्या कर रहे हैं? हाँ, चाबियां बदल रहे हैं, अलग अलग चाबियां बदल रहे हैं. यहां फायदा नहीं हुआ वहां जाते हैं, वहां फायदा नहीं हुआ वहां जाते हैं. देश और दुनिया में नेचुरोपैथी या आयुर्वेद से लेके आज तक 160 से भी ज्यादा अलग अलग थेरापियां चल रही है. लोग इधर से उधर से इधर घूम रहे हैं. कहीं से कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो लास्ट में लोग एलोपैथी में जाते हैं. और अब तो सबसे पहले एलोपैथी में जाते हैं. थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, चलो हॉस्पिटल, दवाई ले लो, इंजेक्शन ले लो, दाखिल हो जाओ, सर्जरी करवा लो. यही सिलसिला चालू है. सब बीमार है यहाँ पे. इतनी थेरापियां होने के बावजूद भी बीमारियां बढ़ रही है. कई जगह पे ऐसे कितने नेचुरोपैथी सेंटर है. हाँ, कई पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में. आयुर्वेद में भी लोगों ने कितनी मेहनत की है. आयुर्वेद में धन्यवाद देना चाहिए. एक पेड़ पौधों तक, एक पेड़ पौधे के बारे में, उसकी जड़ों से लेकर फल फूल तक बहुत बारीकाई से परीक्षण किया है. बहुत बारीकाई से. ये पौधा किस में काम आता है, ये पेड़ किस में काम आता है, ये फूल किस में काम आता है, ये फल किस में काम आता है. कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी. यदि आयुर्वेद सक्सेस होता, नेचुरोपैथी क्यों आई? नेचुरोपैथी सक्सेस होती तो होम्योपैथी क्यों आई? एक के बाद. तो देखो, किसी पैथी की अपोज में मैं नहीं बोल रहा, मगर इतना तो सही है, सबसे पुरानी नेचुरोपैथी थी तो आयुर्वेद को क्यों आना पड़ा? यदि आयुर्वेद सबसे पुराना था तो नेचुरोपैथी को क्यों आना पड़ा? कहीं ना कहीं किसी में कोई ना कोई कमी रहने की वजह से, लोगों को मन चाहा रिजल्ट न मिलने की वजह से दूसरे को आना पड़ा. और आज पूरी दुनिया एलोपैथी पे आके खड़ी रही है. पूरी दुनिया
एलोपैथी में भी क्या रिजल्ट है हम सब जानते हैं। कोरोना ने हम सबको दिखा दिया, एलोपैथी को ओपन कर दिया। हाँ, जितने कोरोना के पेशेंट हॉस्पिटल में गए, घर पे उससे ज्यादा गए या कम गए? हाँ, कम गए। तो क्या है ये एलोपैथी? कई डॉक्टर बेचारे कोरोना में चले गए। हाँ, कई डॉक्टर चले गए, खुद वैक्सीन बनाने वाले भी चले गए कोरोना में, जिन्होंने वैक्सीन बनाई कोरोना की वो भी चले गए। પશુ પક્ષીઓ કેમ બીમાર થતા નથી? खरबोपति, अब्जोपति, हाँ, पूरा परिवार चला गया, पूरी संपत्ति रख के। देखा हम सबने। और वहां कुदरत के सहारे जीने वाले कोई पशु पक्षी बीमार ही नहीं है। हाँ, यहां भी देखो कोई भिखारी को कोरोना हुआ क्या? हाँ, घूमता रहता है सिटियों में, कोई भिखारी को भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों? हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं हैं हम बीमार क्यों हैं। बस कुछ हुआ तो ट्रीटमेंट खोजते हैं। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी बीमार नहीं हैं। वे लोग कहीं पे भी पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी ने सिखाया नहीं है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ 3 बातों को वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। न सिर्फ जानते हैं, चुस्त उसका पालन करते हैं, पूरी निष्ठा से उसका पालन करते हैं। इसीलिए वो बीमार नहीं है। शायद कभी कोई बीमार हो भी गया तो उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं, बीमार ही नहीं होते हैं। मगर कभी कभार हो गया तो अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। वो जानते हैं कैसे हमें ठीक होना है, हम नहीं जानते। बस इन 3 चीजों को, 3 बातों को ही हमें यहां समझना है। और ये 3 बातों पे हमने यदि गौर किया, पूरी निष्ठा से पालन किया, शायद कोई बीमार रह सकता है। शायद XYZ जिसको जो भी प्रॉब्लम होता है, ये 3 बातों से सॉल्यूशन मिल जाता है, सॉल्व हो जाता है। આપણો આહાર શું છે? आज तक पता ही नहीं हमारा आहार क्या है। जो भी जो होता है, जो भी बैठा जपे, जो आए वो खपे। हाँ, जो भी मिला खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। पता ही नहीं हमारा आहार क्या है। इंसान सभी पशु पक्षियों का आहार खाता है। इंसान सभी पशु पक्षियों का आहार खाता है। गौर से देखो, आप नहीं खाते तो मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं तो दूसरा खाता है। सभी पशु पक्षियों का आहार इंसान खाता है। यह भी हम कह सकते हैं कि इंसान सभी पशु पक्षियों को भी खाता है। हाँ, इंसान सभी पशु पक्षियों को भी खाता है और अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठा है। पता ही नहीं हमें क्या खाना है। जो भी मिला बस टंकी खाली होनी चाहिए, जो भी मिला। अरे भाई साहब, तनिक सोचो तो सही, आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया है, तो आप क्या उसमें डीजल डाल पाओगे क्या? हाँ, डीजल डालने से गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। डीजल की गाड़ी है, टंकी खाली हुई है, पेट्रोल मिल रहा है, तो क्या पेट्रोल डलवाओगे आप? बिल्कुल नहीं। आपको पता है ये डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल कैसे डाले, या पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल कैसे डाले? अरे ये भी तो एक गाड़ी है। हाँ, ये भी तो गाड़ी है, इसमें भी तो टंकी है। कभी सोचा ये गाड़ी किससे चलती है? कभी नहीं।
टंकी खाली हुई, पेट्रोल मिला तो पेट्रोल डाला, डीजल मिला तो डीजल डाला, गैस की फिट नहीं है फिर भी गैस डाला, हाँ मिट्टी का तेल डाला, क्या क्या नहीं डालते हैं। हाँ मकसद यही है टंकी भर ले बस। हाँ यहाँ टंकी भरने से क्या होगा? टंकी तो भर जाएगी मगर इंजन सही तरीके से चलेगा क्या? हमारा इंजन खराब हो जाएगा। तो इसी कारण से हम सब अपना इंजन खराब करके बैठे हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ दर दर भटकते रहते हैं, ये ट्रीटमेंट अच्छी, ये अच्छा, वो अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, घूमते रहते हैं। कहीं से भी मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता, कहीं से भी टेम्पररी मिलता है, अच्छा लगता है, मगर फिर इसको छोड़ दिया, वहीं के वहीं आके खड़े रहते हैं। तो क्या खाना वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम बीमार हैं। दूसरी कौन सी चीज है? पका हुआ आहार। किसी भी पशु पक्षी को आहार पकाने की और खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इंसान ही आहार पका रहा है, सिर्फ इंसान ही, और बीमार है। तनिक सोचो तो सही, जो भी आहार को हम गैस पे 70-80 डिग्री पे उबाल रहे हैं, हाँ सोचो तो सही, उसमें कौन से तत्व बचते हैं? हाँ कौन से तत्व विटामिन बचते हैं? सोचो, जो एक सजीव आहार था, उसको गैस पे उबाल के हमने नष्ट कर दिया, मृत कर दिया, और हम खाते हैं। टेस्टी तो लगता ही है, हाँ अच्छा लगता है, बार बार खाने को मन करता है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मसालों की वजह से। हाँ सिर्फ मिर्च मसालों की वजह से हमें टेस्टी लगता है। एक दिन कोशिश करो, बिना कोई मसाला डाले दाल सब्जी बनाओ, खाओ, कितनी खा सकते हो? कितने दिन खा सकते हो? नहीं खा पाएंगे। और ये टेस्ट की जरूरत किसको है? बॉडी में जिसको मेहनत करनी पड़ती है पचाने की, उसका टेस्ट के साथ कोई लेना देना है क्या? हाँ टेस्ट की जरूरत तो ये बाइक जो अंदर बैठी है ना, हाँ वो परेशान कर रही है। हाँ जीभ। નવી ભોજન પ્રથાનો અનુભવ કરી તેને ચકાસીને ઘણા બધા સાધકોએ તેનો લાભ મેળવ્યો છે. ઘણા બધા લોકો છે તેમને ખૂબ સારો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તેવો અનુભવ તેમને પોતાના કમેન્ટમાં અનેક સાધકો આપ્યા છે. અગાઉના એપિસોડમાં પણ તમે જોઈ શકો છો, અત્યારના એપિસોડમાં પણ તમે જુઓ, ખૂબ લોકોને લાભ થઈ રહ્યો છે. ને યુએસએથી, અમેરિકાથી એક સાધકે ખૂબ સારો એવો અનુભવ પોતાનો રજૂ કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે સાહેબ, હું અમેરિકા રહું છું અને ઘણી બીમારી હતી, પરંતુ નવી ભોજન પ્રથાની રીતથી ઘણી બધી બીમારી નીકળી ગઈ છે. મારે મ્યુકસ કોલાઇટિસની બીમારી બચપનથી હતી. હું 4 વર્ષથી સાદા પાણીનો એનિમા લઉં છું. મુંબઈ અને અમેરિકાના ડૉક્ટર મારી પેટની બીમારી ન કાઢી શક્યા. તે બીમારી નેચરલ રીતે નીકળી ગઈ છે. તો આ રીતે અનેક સાધકોએ પોતાના અનુભવ પ્રસ્તુત કર્યા છે. આ પ્રકારના અનુભવ છે તેને આધારે આપણે વિચારી શકીએ કે કેટલી અમૂલ્ય આ સાધના છે. પંડ્યાજી, આપણે લંઘનમ પરમ ઔષધની વાત કરી, તો એમાં ઉપવાસ કરવા માટે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે હવે પંડ્યાજીની વાત સાંભળી, ચૌહાણ સાહેબની વાત સાંભળી અને નક્કી કરી લે કે હવે મારે કાલથી ઉપવાસ કરવા છે, તો કાલથી ઉપવાસ કરી દે, અને પછી થોડાક દિવસ થાય પછી એમ કે મારા આજથી ઉપવાસ બંધ કરી દેવા છે. તો શું આ ઉપવાસની ઉપવાસ કરવા અને છોડવા એની કોઈ રીત છે
કે હું તરત કાલથી કરી શકું? ઉપવાસ કરવા બહુ સરળ બાબત છે. જ્યારે નિર્જળ ઉપવાસની વાત કરીએ, નિર્જળ ઉપવાસ, નિર્જળ એટલે પાણી પણ નહીં. આ ઉપવાસ લગભગ નવરાત્રિમાં અમારી શિબિરો થતી હોય છે અને ઘણા લોકો એની સાથે જોડાયેલા હોય છે. ગઈ નવરાત્રિમાં, આસો સુદ નવરાત્રિમાં હું અને ગુરુજી પણ સાથે હતા. હિમાચલ પ્રદેશમાં પરમ સુખ દિવ્યાશીષ આશ્રમમાં હતા. 60 લોકો ત્યાં હતા અને બધાએ નિર્જળ ઉપવાસ રાખ્યા હતા. નિર્જળ એટલે પાણી પણ નહીં. પાણી પણ એક આહાર છે, એને પણ પચાવવું પડે છે. એટલે એ ઉપવાસમાં ગણાતો નથી. ઉપવાસ એટલે કાંઈ પણ લેવાનું નથી. એ નિર્જળ ઉપવાસ કરવા બહુ સહેલા છે, પણ જો એને છોડવાની સિસ્ટમનો આપણને ખ્યાલ ના હોય અને આડેધડ ઉપવાસ છોડીએ તો એ કરેલા ઉપવાસ ફાયદા કરતાં નુકસાન વધારે કરે છે. એટલે ઉપવાસ છોડવા માટે કોઈ જૂના સાધકો હોય આ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા, એમની દેખરેખ નીચે ઉપવાસ કરવા જોઈએ અને ઉપવાસ છોડવા જોઈએ. લાંબા ગાળાના ઉપવાસ છોડવા માટે શરૂઆતના તબક્કે ફક્ત અડધું લીંબુ અને અડધો ગ્લાસ પાણી એ જ લેવું જોઈએ. એના પછી જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે ઈચ્છા ઉપર કંટ્રોલ કરવો જરૂરી છે. સહેજ પણ તમે લેવાનું ચાલુ કર્યું એટલે બોડી સતત માગવાનું ચાલુ કરશે, પણ કંટ્રોલ જરૂરી છે. કલાક પછી ફરી પાછું એક લીંબુ અને એક ગ્લાસ પાણી. એના પછી કલાક, 1.5 કલાક પછી કોઈ પણ ફ્રૂટ્સનો જ્યુસ, જે જ્યુસી ફ્રૂટ્સ છે, મોસમી છે, દ્રાક્ષ છે, દાડમ છે, પાઇનેપલ છે, આવા બધા જે જ્યુસ છે એનો જ્યુસ તમે લઈ શકો છો. જેટલા દિવસ તમે નિર્જળ ઉપવાસ કર્યા એના અડધા દિવસ તમારે રસાહાર ઉપર રહેવું જોઈએ, તો જ એ વસ્તુ ફાયદો કરે. બાકી કરેલા ઉપવાસ, નિર્જળ ઉપવાસ કર્યા છે પછી તરત જ તમે ફ્રૂટ્સ ખાઓ કે સલાડ ખાઓ કે રાંધેલો ખોરાક ખાઓ તો એ ફાયદો નહીં પણ એ નુકસાન કરે છે. પંડ્યાજી, ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે ભાઈ એનીમાં છે એ તો ડૉક્ટર આપે ને, એનીમાં તો મને બહુ જ આમ સુખ છે, તો એનીમાં ઘરે કરી શકાય? એનીમાં વિશે શું આપે? એનીમાં જેનું નામ આપ્યું છે સંજીવની ક્રિયા. સંજીવની એટલે જે મુર્દાને પણ બેઠા કરે છે અને આવા અનેક દાખલા બન્યા છે. કેટલાય લોકોના એમાં નવું પરિવર્તન આવ્યું છે, નવું જીવન મળ્યું છે. સંજીવની ક્રિયા મેડિકલ બાબતની વાત કરીએ, એલોપેથીમાં વાત કરીએ તો એનો એટલો બધો એમાં ઉલ્લેખ નથી એલોપેથીમાં. એટલે ડૉક્ટરોને એના વિશે બહુ જ્ઞાન નથી, એમને એ પ્રમાણે અભ્યાસમાં પણ લેવામાં આવ્યો નથી, એટલે એ એનાથી અજાણ છે. એટલે 100% એમને ખ્યાલ નથી, તો એલોપેથીમાં એનો વિરોધ થઈ શકે. બાકી સંજીવની ક્રિયા એટલે કે એનીમાં આયુર્વેદમાં હજારો વર્ષ પહેલાં પણ હતો. ઋષિમુનિઓ પણ આ ક્રિયા કરતા હતા. ટોટલી રો ડાયટ પર હતા, જંગલોમાં રહેતા હતા, ફળ ફૂલ કંદમૂળ આ જ ખાતા હતા. છતાં પણ એ લોકો સવારે વહેલા ઉઠી અને નદી કે સરોવરમાં સ્નાન માટે જતા હતા. યોગ દ્વારા એ પાણી ચડાવતા હતા અને એ સંજીવની ક્રિયા કરતા હતા. અથવા તો કોઈ વૃક્ષની પાઇપ એવી ડાળી લેતા હતા, જે પાઇપ જેવી પોલી હોય, એના દ્વારા પણ એ પાણી ચડાવતા હતા અને આંતોની સફાઈ કરતા હતા. એટલે સંજીવની ક્રિયા એ કોઈ નવી વસ્તુ નથી. ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમમાં જ એનું સંશોધન થયું છે એવું નથી. નેચરોપેથીમાં પણ આની વાત છે, હોમિયોપેથીમાં પણ આની વાત છે, આયુર્વેદમાં પણ આની વાત છે. એલોપેથીમાં આના વિશે બહુ જ્ઞાન નથી એટલે ત્યાં આનો વિરોધ કરે છે. પણ સતત 30 વર્ષના અનુભવોના આધારે આદરણીય બીવી ચૌહાણ સાહેબ પણ કહી શકે છે, 10 વર્ષના અનુભવના આધારે હું પણ કહી શકું છું કે સંજીવની ક્રિયા કરવાથી કોઈ પણ પ્રકારની સાઈડ ઇફેક્ટ હજી સુધી કોઈના ધ્યાને આવી નથી. કેટલું જમવું જોઈએ? कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पूरी तरह से पता है कितना खाना, कितना खाना, चाहे उनके सामने कितना ही अपना आहार क्यों न पड़ा हो, मगर वे लोग जितनी जरूरत होगी उतना ही आहार लेके बाकी वहां से हट जाएंगे, चले जाएंगे, वहां नहीं खड़े रहेंगे.
कि चलो खाना पड़ा है, ढूंढना ना पड़े, यहीं बैठ जाए, भूख लगे तब वही फिर से खाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। जरूरत के मुताबिक मिल गया, तुरंत वहां से हट जाएंगे, कहीं दूसरी जगह पे जाके आराम करेंगे, हाँ, किलोल करेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। इसीलिए वो बीमार नहीं है। कितना खाना उनको पता है। यहां पर हम वो भी पता नहीं कितना खाना। कहीं पे कोई फंक्शन या पार्टी में जाते हैं, हम सबका एक्सपीरियंस है, हर रोज जो घर पे खाते हैं इतना ही खाते हैं, या पार्टी या कोई फंक्शन में जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा खाते हैं। भाई साहब आप बताइए, ज्यादा खाते हैं। सब लोगों का ये, सब लोगों की ये राय है, हम ज्यादा खाते हैं। क्यों? हाँ, फिर तो वही है, टंकी वही है। घर पे खाली रखते हो क्या? हाँ, ओवरलोड कर देते हैं, ओवरलोड। हाँ, कुछ गिफ्ट देना है, टीका लगाना है, कुछ करना है ना, पैसा तो वसूल करो, आए हैं तो। हाँ, ये सोच नहीं है तो भी कुछ अच्छी चीजें बनती हैं, ये सोच के भी हम ज्यादा खा लेते हैं। बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी, थोड़ा थोड़ा सा भी चख लेते हैं, फिर भी जरूरत से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम बीमार हैं। कितना खाना पता नहीं है। सुबह में घर से नाश्ता करके गए हैं, अंदर पड़ा है, सही पाचन हुआ नहीं है। पार्टी में गए, फंक्शन में गए, घर से ज्यादा खा लिया, वो भी अंदर पड़ा है। कई बार 2 जगह से न्योता आता है तो उनको बुरा न लगे, दूसरी जगह भी जाना है, वहां भी चले जाते हैं, चलो वहां भी थोड़ा खा लेते हैं। कई बार 3 जगह से न्योता आता है, हाँ, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। आगे का खाया उसका पाचन नहीं हुआ, दूसरा खाया उसका पाचन नहीं हुआ, तीसरा खाया उसका पाचन नहीं हुआ। शाम को घर पे तो खाना ही है। हाँ, ज्यादा भूख नहीं है, थोड़ा हल्का सा बना लो। हाँ, ज्यादा भूख नहीं है, थोड़ा हल्का सा बना लो। हाँ, पाचन होता नहीं है, अंदर पड़ा रहता है। जो पड़ा रहता है वो सड़ता है, और जो सड़ता है वो ही हमें लड़ता है। रोगों का कारण इतना ही है और कोई कारण नहीं है। इतनी सामान्य बातें भी हम नहीं जानते हैं। रोगों का कारण बस इतना ही अंदर पड़ा है, सड़ा है, वही लड़ता है। निकाल दो, जब तक टंकी खाली न हो, पूरी टंकी खाली न हो, तब तक ज्यादा मत डालो। हमारे पास बाइक है, गाड़ी है, हाँ, क्या हर रोज हम पूरी टंकी पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं? पूरा भरवाते हैं या थोड़ा? हाँ, थोड़ा थोड़ा डालते हैं। हाँ, पूरी टंकी कभी नहीं भरवाते हैं। क्या होता है पूरी टंकी से? पता है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कभी पूरी टंकी नहीं भरते हैं, यहां ओवरलोड करते हैं। हाँ, गाड़ी या बाइक की टंकी खाली रखते हैं, यहां ओवरलोड करते हैं। बीमारी का कारण यही है, कितना खाना पता नहीं है। कई बार तो पूरे परिवार के साथ न्योता मिलता है तो फिर तो खाते खाते भी घर वाले कोने लगा के अभी सुनते हो, बोले क्या है, दबा के खा लेना, शाम को घर पे खाना नहीं बनेगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है तो हम खा लेते हैं, तो ये बीमारी की वजह है। तो कहने का मतलब ये है कि कितना खाना वो हमें पता नहीं। तीसरी बात, कब खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को पता है कब खाना। चाहे कितना ही भोजन उनके सामने क्यों न पड़ा हो, मगर वे लोग जब भूख लगती है
तब ही खाने की कोशिश करते हैं, वरना वो आहार की और भोजन की और नजर भी नहीं डालते। भले पड़ा, हमें जरूरत नहीं है, भूख लगती है तब खाने की कोशिश करते हैं। बिना भूख का खाना और बिना राग का गाना, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे का पड़ा है, दूसरा डाला, तीसरा डाला, जैसे मैंने बताया, जमा रहता है, सड़ता है, वही करता है। कड़ी भूख लगनी चाहिए, ऐसी भूख कि अब तो यार कुछ लाओ, जो भी है चलेगा। हाँ, अरे ठंडा है तो भी चलेगा, लाओ जो भी हो, रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। ऐसी कड़ी भूख लगने दो, और ऐसी कड़ी भूख लगेगी ना, तब हमारे अंदर जो जठर है उसमें अग्नि प्रज्वलित होगा। अग्नि, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, कि तब अंदर जठर में अग्नि प्रज्वलित होगी, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जब जठराग्नि प्रज्वलित हो, तब आप अंदर जो डालोगे, स्वाहा, इसका पाचन हो सकता है। मगर हमारे तो सुबह में उठते ही चक्की चालू हो जाती है। हाँ, भूख हो या ना हो, चाय के साथ कुछ न कुछ नाश्ता तो चाहिए। चाय के साथ नाश्ता नहीं करते हैं तो फिर आधे घंटे के बाद अलग से नाश्ता चाहिए। 10 बजे जॉब पे जाना है, 10-11 बजे, फिर भी खाना है, खा के जाना है। जहां जाते हैं वहां भी कोई नाश्ता मिल जाता है, जॉब पे या वहीं पे भी खा लेते हैं। भूख लगने ही नहीं देते हम, भूख का एहसास होने ही नहीं देते बॉडी को, बस डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। परिणाम जो मैंने बताया, अंदर पड़ा रहता है, सड़ता है, वही हमें करता है। तो ये 3 बातें यदि हम गौर से अपनी लाइफ में शामिल कर देंगे पूरी निष्ठा से, शायद हम बीमार होंगे, या शायद कोई बीमारी ऐसी होगी जो हम दूर नहीं कर पाएंगे, शायद। કઈ રીતે આરામથી પેટ સાફ થાય? सभी पशु पक्षी को देखो, रास्ते में चलते चलते, हाँ, सड़क पे चलते चलते विदिन अ सेकंड में उनका मन क्या हो जाता है। हाँ, चलते चलते पंछी ऊपर उड़ते उड़ते, हम नीचे बैठे तो उड़ते उड़ते भी कर लेते हैं मल त्याग, बहुत आराम से, आसानी से मल त्याग उनका हो जाता है। हमें क्यों इतना परेशान होना पड़ता है, कभी सोचा ही नहीं। परेशान होते हैं, खाते रहते हैं, परेशान होते हैं, खाते रहते हैं। अब पता तो ये चल गया कि रोगों का कारण कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इलाज तो बहुत आसान है, एकदम सरल है इलाज। ढूंढो क्या खाने से कब्ज होता है, उसे छोड़ दो। क्यों खाना है? जिसकी वजह से हम परेशान हैं, जिसकी वजह से हम दर दर भटक रहे हैं, कहीं से कोई इलाज मिल नहीं रहा है, ऐसा आहार क्यों लेना है हमें? जब तक मैं बीमार था, मेरी आधी से भी ज्यादा सैलरी दवाइयों में गई, आधी से भी ज्यादा। आज भी मैं कर्जदार हूं, आज भी कर्जा है मेरे पे। सैलरी उसमें ही जाती थी। क्या क्या नहीं किया मैंने स्वस्थ होने के लिए, क्या क्या नहीं किया, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। शायद आज जिंदा भी न होता, कितनी बीमारियां थी मुझमें। आज 9 साल से घूम रहा हूं, हाँ, 9 साल से मैं घूम रहा हूं, कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं है।
ये रिजल्ट क्या सिर्फ मुझको ही मिल सकता है? आपको ये रिजल्ट नहीं मिल सकता? आपको भी मिल सकता है, सबको मिल सकता है। करोड़ों लोग ये सिस्टम से जुड़े हैं। जो लोग पूरी निष्ठा से इसके साथ जुड़े हैं, सब लोग आज स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हैं। हम क्यों ना हो सके? जरूरत है पूरी निष्ठा से ये सिस्टम को अपनाने की। तो रोगों का कारण पता चल गया, तो ये ढूंढना है क्या खाने से कब्ज होता है। तो सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं, दो ही चीजें 84 लाख योनियों में से इंसान को छोड़ के किसी दूसरे पशु पक्षी को ये दो चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ दो ही चीजों को यहां छोड़ना है। और देखो रिजल्ट, यहां महीनों की बातें नहीं है रिजल्ट में। यहां चुटकी बजा के कुछ ही दिनों में, हम तो यहां यही बोलते हैं कि पहले दिन से जो कल आपको प्रॉब्लम था, आज फॉलो करो सिस्टम। कल आप बोलोगे कि अरे मुझे तो अच्छा है, शाम तक आप बोलोगे कि आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। एक दिन में आप अच्छापन महसूस कर सकते हो, एक दिन में। बस ये दो चीजों को छोड़ना है। तो क्या है ये रोग? हजारों में, कारण एक ही है। चाहे XYZ, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, उसका कारण एक ही है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कब्ज। दूसरा कोई कारण नहीं है। हम आपको यही बताएंगे तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अरे ये तो बिल्कुल गलत बात है, हमें तो कब्ज है ही नहीं। हाँ, हम तो हर सुबह में टाइम टू टाइम टॉयलेट जाते हैं, हमारी सफाई हो जाती है, दिन भर चाहे कुछ भी खाए, कितना भी खाए, दोबारा हमें जाना ही नहीं पड़ता है। हमें कब्ज कहाँ है? आज तक हमारी मान्यता ये है ना? यही है ना? हाँ? हमें कब्ज नहीं है, हम टाइम टू टाइम टॉयलेट जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो वहां कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को, या घर पे भी हम पशुपालन करते हैं, उनको भी देखो। वे लोग दिन में कितनी बार मल त्याग करते हैं? हाँ, कितनी बार मल त्याग करते होंगे वे लोग? बताइए। 3-4 बार। हाँ, बार बार खाते हैं, जाते हैं, खाते हैं, जाते हैं। क्यों? यहां हम भी खाते तो हैं 3-4 बार, 2-3 बार, 2 बार तो सब लोग खाते हैं। हाँ, 2 बार तो सब खाते हैं। तो एक ही बार क्यों जाते हैं? कम से कम 2 बार तो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जाते? और वे लोग क्यों जाते हैं? उनका सही आहार है। बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना पाचन हो जाता है, जरूरत नहीं होती है बॉडी निकाल देती है तुरंत। हमारा गलत आहार है। जरूरत जितना भी, कई बार हमें उसमें से नहीं मिल रहा है। खाते तो है ज्यादा, मगर जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, वो भी उसमें से इतनी नहीं मिल रही है। ढेर सारा कूड़ा बनता है, ढेर सारा, और ऐसा कूड़ा बनता है जो बाहर निकल ही नहीं पाता है, आंखों में चिपक जाता है, इसीलिए निकलता नहीं है। कई लोगों को टॉयलेट में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधा घंटा भी कई लोगों को बैठना पड़ता है। मुसीबत से बल निकलता है। हाँ, कुछ ना कुछ लेते हैं, तब सुबह में पेट की सफाई होती है, ऐसा ही लोगों का मानना है। નાની ઉંમરમાં આક્રંદ અને રોગો। आज 60 साल की उम्र का भी कोई मर जाता है, 60 साल की उम्र का भी कोई मर जाता
यही बोलते हैं कि यार वो तो 60 साल की उम्र थी उनकी, बुढ़ा था। अरे 60 साल की उम्र का बुढ़ा, जब हजारों साल की आयु थी, 50 साल के बाद तो शादी के बारे में सोचते थे, 50 साल के बाद शादी के बारे में सोचते थे। आज 60 साल में कोई बच जाता है तो बोले वो तो बुढ़ा था 60 साल का। किसकी गलती है? कहां गलती हुई? 60 साल में लोग मर जाते हैं। अरे 60 साल की कहां बात करते हो? हाँ, आज तो किसी भी उम्र में कोई भी रोग हो सकता है, किसी भी उम्र है। यहाँ 4-4 साल की उम्र के बच्चों को भी शुगर है। हमारे पास कई केसेस ऐसे आते हैं, 4-4 साल की उम्र के बच्चों में शुगर है। हाँ, अभी तो पढ़ने भी नहीं बैठे हैं, चश्मे लग गए हैं। बहुत छोटी उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं। अभी कल एक कॉल आया था पुणे से मुझे, पुणे से एक कॉल आया, 18 इयर्स का बच्चा है, 18 साल का, 150 किलो वेट है। 18 साल का बच्चा है, 150 किलो वेट है। दूसरा बेटा है उससे कम उम्र का, 130 केजी वेट है। हस्बैंड है 105 केजी वेट के हैं। वाइफ एनडीएस फॉलो कर रही है, वो स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। पूरा परिवार, वो बोल रही थी कि 40 लोगों का टोटल हमारा परिवार है। पूरा परिवार वाइफ की अपोज में है। वाइफ के मायके वालों को जा जाकर शिकायत करते हैं कि ये कर रही है, ये नहीं खा रही है, वो नहीं खा रही है। हाँ, वो उनकी कोई दवाई चालू नहीं है, बाकी सब लोगों की दवाइयां चालू है, फिर भी ये सिस्टम बाकी को फॉलो नहीं करता है। हाँ, कल रो रही थी मुझसे बात करते करते, रो रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूं। मैंने बोला जिसके भाग्य में होता है उसे ये सिस्टम मिलती है। जैसे मिल तो जाती है, सबको यहाँ मिल रही है, जिसके भाग्य में होता है उसको टिकती है। टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना वेट लेके घूम रहे हैं। देखो ये बच्चा जॉब क्या करेगा? 18 साल की उम्र में 150 किलो वेट है, आगे क्या होगा? हाँ, जॉब क्या करेगा? उससे शादी कौन करेगा? हाँ, बस ये सोचते ही नहीं, खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते। क्या होगा कल इसके साथ? જે એકાગ્ર મન રહે ને એ એનડીએસ થી બહુ જ સારું રહ્યું. એકાગ્ર મન બહુ થાય ને તમારામાં સારા પોઝિટિવ વિચારો આવે, નેગેટિવ વિચારો ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય તમારા, અને આત્મવિશ્વાસનું લેવલ તમારું બહુ સારું થાય. સવારે ઉઠીને 5 કલાકનું લંઘન કરવાનું, 5 કલાક કોઈ પણ વસ્તુ લેવાની, મોઢામાં પાણી બી નાખવાનું નહીં. એના પછી ગ્રીન જ્યુસ લેવાનો, એના પછી આપણે કાચી સિસ્ટમ પર જે રાંધ્યા વગરનો ખોરાક લેવાનો, અને સાંજે રાંધેલો ખોરાક લઈએ એમાં 30% લોટની આઈટમ, 70% આપણે સબ્જીની આઈટમ લેવાની. પછી મારું વજન પહેલાં એનડીએસ પહેલાં મારું વજન 90 કિલો હતું, અત્યારે મારું વજન 65 કિલો છે. એ નવરાત્રી શિબિર કરવા માટે ગયો હતો. ત્યાં અમે મધ અને લીંબુ ઉપર અમે 9 દિવસ કાઢ્યા. એટલે ત્યારે અમને એનડીએસ માટે થઈને ત્યાંનો મેરઠથી 2014થી અમે આને એનડીએસને જાણતા થયા. તે પછી નરહરીભાઈ પંડ્યા કરીને પોતે છે એ એનડીએસનું છે એ શિબિરો લે છે, એની સાથે મારે પરિચય થયો. અને મહેસાણા ગ્રુપ એના સાથે 4 વર્ષથી અમે અહીંયા સિદ્ધપુરમાં એની દ્રાક્ષની શિબિર અને મેંગો શિબિરો અમે એટેન્ડ કરી છીએ. પણ નરહરીભાઈ પંડ્યા છે એ મારા માટે થઈને હું એમ કહું ને કે વધારે મને પોતાને છે એ નરહરીભાઈ પંડ્યા ગઈમાં છે. મેં કેમો લીધા પણ નથી. હું 20 દિવસ મેં ખાલી રસાહાર ઉપર અત્યારે કરી લીધા છે. ત્યાં જ મને જે કાંઈ દુખાવા આ તે કાંઈ જે કાંઈ હતું બધું 20 જ દિવસની અંદર દૂર થઈ ગયું છે. નથી હું કોઈ મેડિસિન લેતી કે નથી હું કાંઈ ટ્રીટમેન્ટ લેતી, કશું જ નથી લેતી. 3 દિવસની શિબિર કરી. શિબિર કર્યા પછી ઘેર આવીને મેં આ એનડીએસ ફોલો કરી. 7 મહિના સુધી ફોલો કમ્પ્લીટ કરી તો મારે 2 ઢીચણના અને 2 પગની પાનીના 4માંથી 1 પણ ઓપરેશન કરાવવા ના પડ્યા. અને આ ભોજન પ્રથા બહુ જ સારી છે. તો મેં હું છે સર મોટાભાગના છે યંગ લોકો નથી આવતા, જે તકલીફવાળા છે, દુઃખી લોકો છે, બધી જગ્યાએથી હારેલા છે, એ લોકો આવે છે શિબિરોમાં અને લાભ લે છે. મોસ્ટ પ્રોબેબલી અમારું માનવું એવું છે કે શરૂઆતના
2-3 મહિના સુધી કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ રાખે છે, પછી કોઈ બહાના કાઢે અથવા તો ઘરના પ્રોબ્લેમ કહીએ અને પછી છોડી દેતા હોય છે. કોન્સ્ટન્ટ નથી રાખતા. એટલે કીધો એલોપેથી સક્સેસ નથી, આ પેલો આયુર્વેદિક સક્સેસ નથી, અને આ સક્સેસ છે નવી ભોજન પ્રથા. પોતાના જીવને ઉતારે તો 100% જળમૂળથી રોગ જતા રહે. મારો અનુભવ કહું છું, મને જો ડાયાબિટીસ હતું, બીપી હતું, મારું વજન 80 કિલો હતું, આજે મારું વજન 65 થી 67 કિલો છે. આમ તો 100% અસરકારક છે. આ જે જો કમ્પ્લીટલી ફોલો કરે એની સિસ્ટમ પ્રમાણે તો 100% જળમૂળથી રોગ જતા રહેશે બધા, એમાં કોઈ શંકા નથી. જો અપનાવો તો નવી ભોજન પ્રથાથી શું થાય કે તમારા શરીરની અંદર જે કચરો હોય એ દૂર થઈ જાય, એટલે તમારું જે પેન્ક્રિયાસ છે એ કામ કરતું થઈ જાય. પેન્ક્રિયાસ કામ કરતું થઈ જાય એટલે ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ થતો ચાલુ થઈ જાય. હવે ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ થતો ચાલુ થઈ જાય તો આપણું જે શરીર હોય એ જ ઇટ ઇઝ જે પહેલાં કામ કરતું એ તે કામ કરતું થઈ જાય. એટલે અમારી નવી ભોજન પ્રથાથી કોઈ રોગ મટતો નથી, પણ રોગ જતો જ રહેશે એમ. એટલે રોગ તો પહેલાંય નહોતો અને આજે નથી, પણ એ થોડા ટાઈમ માટે એક અંગ કામ કરતું બંધ થઈ જાય તો એને આપણે રોગ કહીએ. તો ફરીથી ચાલુ થઈ જાય એટલે આપણું ડાયાબિટીસ જતું રહે. એટલે કહેવાનો મતલબ કાયમ માટે જતું રહે. અને અત્યારે હાલે જેમ કે મારા ફાધર તો લગભગ 25 વર્ષથી ડાયાબિટીસની ગોળીઓ ખાતા હતા, પણ નવી ભોજન પ્રથામાં આવ્યા પછી એમને સંપૂર્ણ ડાયાબિટીસ જતો રહ્યો. અત્યારે હાલે શેરડીનો રસ પીવાનો, જ્યારે બી જે ખાવું હોય એ ગળ્યું ખાઈ શકે છે. એટલે ડાયાબિટીસ જતો જ રહેશે એમ, એમાં ફરીથી આવતો જ નથી. એક છોકરો 138 કિલોનો હતો, એ લગભગ 72 કિલોનો થઈ ગયો. અને એનો જે કહેવાય ને કે વર્ણ પણ એટલો બદલાઈ ગયો, એકદમ સામ હતો, અત્યારે એકદમ ગોરો થઈ ગયો. એક બેન હતા 50 વર્ષની ઉંમર જેટલા લાગતા હતા 38ના, પણ અત્યારે 25 વર્ષની ઉંમર જેટલા લાગે છે. તો આ રીતે મોઢા ઉપર ડાઘ ધબ્બા, સ્કિન સારી થઈ ગઈ ભાઈ, આંખો નીચેના કુંડાળા હોય, બોડી હોય તમારું વધારે પડતું તો બી માપનું થઈ જાય. એટલે નવી ભોજન પ્રથાથી તમારું શરીર એકદમ સાદી ભાષામાં કહે તો સુડોળ બની જાય. એવું નહીં કે બધાનું શરીર પતલું થઈ જાય, પણ જે જરૂરી હોય એટલું થઈ જાય, માપનું થઈ જાય, નહીં વધારે નહીં ઓછું. અને આપણી નવી ભોજન પ્રથા એ એટલી સરસ અને સરળ છે કે જે ઘરે બેઠા પણ તમે કરી શકો છો અને કોઈ પણ રોગથી મુક્ત થઈ શકો છો અને આજીવન રોગ મુક્ત તમે રહી શકો છો. કોઈ પણ ઓપરેશન કે દવાની જરૂર જ પડતી નથી. અને મેઇન વસ્તુ એ છે કે આમાં કોઈ ખર્ચો પણ નથી, તમારે ક્યાંય દાખલ થવાનું નથી, કંઈ નહીં. ખાલી આવી રીતે શિબિરમાં જઈને તમે સમજી લો, અથવા તો ઘરે બેઠા પણ તમે ઓનલાઈન સમજી શકો છો. ફક્ત 2 વસ્તુ છોડો. तो 2 चीजें ऐसी हैं जो इंसान लेता है, दूसरा कोई नहीं लेता है. इसमें एक है मेल दूध और दूध से बने XYZ जो भी चीजें हैं वो. सारे रोगों की जड़ कब्ज है, तो कब्ज की यदि कोई जड़ है तो वो है दूध. एक घर मुझे बताओ जिसके घर में दूध आता हो, उसके घर में दवाई ना आती हो. एक घर बताओ, ढूंढो पूरे जयपुर में, जहां रहते हो अपनी सोसाइटी में ढूंढो, एक बताओ मुझे कोई हो तो. शायद देखो अपवाद हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, अपवाद हर जगह पे होता है. मगर मैं जहां जहां जाता हूं, घूमता रहता हूं, मुझे आज तक कोई नहीं मिला उठ के बोलने वाला कि सर आप गलत बोल रहे हो, हमारे घर में दूध आता है मगर दवाई नहीं आती है. आज तक कोई नहीं मिला. या हमारे बगल में दूध आता है दवाई नहीं आती है, कोई नहीं मिला. जहां दूध वहां दवाई, जहां दूध वहां दवाई. एज अ टीचर मैंने बच्चों को पढ़ाया है, हम सब पढ़े हैं. दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है, और हम लेते आए, खाते आए, पीते आए. उनमें से बनी कई चीज, कई लोग बोलते हैं कि मैं दूध नहीं पीता हूँ, बस मैं तो चाय ही पीता हूँ, चाय में दूध है. बोलते हैं मैं चाय नहीं पीता हूँ, कॉफी पीता हूँ, उसमें भी दूध है. चाय दूध कॉफी कुछ भी नहीं लेता. मैं दही खाता हूँ, उसमें भी वही है. दूध से बनी कोई ना कोई चीज हर इंसान लेता है, हर इंसान. दिन में एक बार नहीं, बार बार कई लोग लेते हैं, बार बार. सोचो तो सही, कुदरत ने जिसको दूध दिया है इसकी बातें हैं यहाँ पे. जिसको दूध दिया ही नहीं उसको तो लेने की नौबत ही नहीं है. जिसको दूध दिया है उसकी बातें हैं.
कुदरत ने दूध जिसको दिया है किसके लिए दिया है? किसके लिए? उसके बच्चे के लिए। किसी दूसरे का उस पर अधिकार है क्या? हाँ, किसी दूसरे का अधिकार है क्या? है कोई किसान जो गाय भैंसों को पालन करने वाला कोई यहाँ पे? नहीं है कोई। मैं किसान हूं, हम रखते थे गाय भैंसे, काफी मैंने बचपन में चराया भी है, हमें पता है। गाय या भैंस बछड़े को जन्म देती है, थोड़ी देर बछड़े को खुला रखते हैं, फिर बाद में तुरंत उसको बांध देते हैं, बछड़े को बांध देते हैं। जब दूध निकालने का टाइम होता है सुबह शाम, तब बछड़े को खोलते हैं दूध पीने के लिए। दो ही टाइम। जब बछड़े को खोलने के लिए जाते हैं ना, घर में से गाय या भैंस या उसका बछड़ा हाथ में बाल्टी देखता है, वो खुश हो जाते हैं। हाँ, वो खुश हो जाते हैं। अब हमें खोलेंगे दूध पीने के लिए, गाय खुश होती है, अब मैं मेरे बछड़े को दूध पिलाऊंगी। खुश हो जाते हैं, चक्कर काटने लगते हैं इधर उधर, बछड़ा कूदा कूद करने लगता है। छोड़ने जाओ ना तो मुसीबत से आप उसको छोड़ पाओगे। कई बार अकेले से तो वो छोड़ भी नहीं पाओगे, आप दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। अरे कहाँ गए, आओ ना, पकड़ो इसे। हाँ, जैसे आपने छोड़ा, कूदता कूदता हाँ अपनी माँ के आंचल को ढूंढने लगेगा। हाँ, जैसे आंचल आया मुंह में, हाँ, जोर जोर से अपना माथा पटकाएगा वहां पे। हाँ, गाय भी इतनी खुश होती है, बछड़ा अपना पूंछ खड़ा कर देता है। हाँ, गाय प्यार से उसे चाटती है, बछड़ा दूध पीता है। मगर बछड़े के मुंह में थोड़ा सा भी दूध दिखा नहीं, घसीट के, हाँ, घसीट के वापिस लिया नहीं, अकेले से नहीं लिया जाता। अरे कहाँ गए, ये सारा दूध पी जाएगा, चलो ना। अरे दूध पी जाएगा तो किसका पी जाएगा? उनकी माँ का है, तुम्हारा तो नहीं पी रहा है। हाँ, उसी बस से घसीट के ले जाते हैं। उस वक्त सोचो प्लीज, बछड़े के दिलो दिमाग में क्या होता होगा, एक माँ के दिलो दिमाग में क्या होता होगा। आप आपके बच्चे को दूध पिला रहे हो और कोई बच्चे को छीन के ले जाता है, क्या बीतती है वो माँ पे, क्या बीतती है वो बछड़ों पे? कभी सोचा है? उनकी आंखों में आंसू आते हैं, देखो तो सही। मगर हमें उनसे क्या? हाँ, हमें उनसे क्या? हाँ, हमें तो दूध चाहिए, हमें उनसे क्या? दलील करते हैं, यदि बछड़े को इतना सारा दूध पिलाएंगे तो बछड़ा मर जाएगा। हाँ, ये 4-5 लीटर दूध बछड़ा पी सकते हैं क्या? ऐसी दलील करेंगे। कुदरत मूर्ख है क्या, इनको इतना दूध दिया है? हाँ, आपको थोड़ा सा ही दिया है। हाँ, इंसान को बहुत थोड़ा सा दूध दिया है, इनको इतना दूध क्यों दिया है? पागल है कुदरत, इनको इतने दूध की जरूरत है। और बछड़ा एक साथ 4-5 लीटर दूध पी नहीं सकता। वो तो आपने बांध के रखा है पशु को, सुबह शाम 2 टाइम ही दूध निकालते हो, इसीलिए इतना दूध जमा होता है। वरना खोल दो गाय बछड़े को, देखो क्या होता है। जब भी भूख लगेगी बछड़ा दूध पीने लगेगा, जरूरत के मुताबिक मिल गया, बछड़ा वहां से अपने आप बन जाएगा। या माँ को पता चला कि बस इतना इनके लिए काफी है, माँ वहां से हट जाएगी, नहीं पिलाते पीने देगी दूध। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जरूरत पड़ेगी, उसी मुताबिक दूध पीता रहेगा। वो एक साथ थोड़ा 4-5 लीटर दूध पी सकता है। मगर हमें दूध निकालना है तो कुछ ना कुछ तो बहाने चाहिए हमें। वैसे भी और एक प्रयोग करके देखो, गाय के बछड़े को भैंस को दूध पिलाने के लिए छोड़ो, भैंस के बछड़े को गाय को दूध पिलाने के लिए छोड़ो, पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है। पिलाने देगी दूध कोई? पीने देगी? बिल्कुल नहीं, नजदीक भी नहीं आने देगी।
तो भाई साहब हम तो इंसान हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं और जानवरों के दूध के पीछे क्यों पड़े हैं जो हमारे लिए है ही नहीं। हाँ, हमारे लिए है ही नहीं, वो अपने बच्चों के लिए है। दूसरे बच्चों का दूध छीनकर भी हाँ उनकी आंखों की भी हाय हमें लगती है, इसीलिए भी हम बीमार हो सकते हैं। हाँ, किसी की हाय फैल नहीं जाती। हाँ, तुलसी हाय गरीब की कभी न खाली जाए, मुए ढोर की खाल से लोहा भस्म हो जाए। हाँ, लोहा भी भस्म हो सकता है। हाँ, इसी से भी हम बीमार हो सकते हैं। दूध के बारे में तो काफ़ी बोल सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। विज्ञान ने हमें पढ़ाया है, समझाया है, दूध और दूध से बनी चीज़ें यानी कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है। मगर दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है, मगर किसका? अपनी माँ का। दूध पौष्टिक और संपूर्ण आहार है, किसका? अपनी माँ का। पराई माँ का दूध जहर है, पराई माँ का दूध जहर है। कभी कोई माँ ने, इंसान की बात करे, इंसान की, कभी कोई माँ ने अपने बच्चे को दूसरी माँ का दूध पिलाया क्या? हाँ, दूसरी माँ का बच्चा कभी, हमारी औरत ने कभी दूसरी माँ का बच्चा दूध पिलाया क्या? कोई इंसान दूसरी माँ का दूध न पीता है, न कोई पिलाता है, और जानवरों का दूध पीता रहता है। इसीलिए तो किसी को बोलना पड़ता है ना, हाँ, ये भैंस को डूबा कहते हो, डूबा जैसा है, और साठ कहते हो, साठ जैसा है। हाँ, उपाधियां देते हैं इंसान को इन लोगों की हम। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार ऐसा विचार, ऐसी सोच। हमारा आहार ही पशुओं में से है, तो हमारी सोच ऐसी हो सकती है, क्या हो सकती है दूसरी? विज्ञान ने यदि एक शब्द दूध संपूर्ण आहार है, नो डाउट, मैं सहमत हूं उनसे, दूध पौष्टिक आहार है, मैं सहमत हूं, मगर किसका दूध? अपनी माँ का। पराई माँ का दूध जहर है। विज्ञान ने इतना ही लिखा होता ना कि दूध संपूर्ण आहार है, पौष्टिक आहार है, मगर हमारी माँ का दूसरे का दूध जहर है। इतना विज्ञान ने जो लिखा होता, आज दुनिया में न एक डॉक्टर होता, न कोई हॉस्पिटल होती, न कोई बीमार होता। दूध इतना इफेक्ट करता है हमारे पर। हाँ, मैं यहां वो जरूर बताऊंगा। जो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क है जिसका, चोटी में से पसीना निकल के आपकी गुट की एड़ी में जमा हो, इतना हार्ड वर्क आप करते हो, तो शायद ये दो चीजें मैं जो बोल रहा हूं, बताने जा रहा हूं, शायद तो फिर भी बोलूंगा, शायद पाचन हो सकती है, मगर अब इतना हार्ड वर्क है किसका? हाँ, यहाँ बैठे हम, है हमारा कोई इतना हार्ड वर्क? हाँ, अरे हम तो पूरे दिन में बॉडी में से पसीना निकल ही नहीं देते। हाँ, फिर जमा होने की बात ही कहाँ है? पसीना निकल नहीं देते। इतने हॉल में कितने पंखे चालू है देखो। हाँ, देखते हैं, पंखा देख के बैठते हैं, बैठने की भी सोचते हैं ना तो पंखा देख के बैठते हैं। हाँ, एसी देख के बैठते हैं, गाड़ी में एसी चाहिए, घर में एसी चाहिए, टॉयलेट में एसी चाहिए, किचन में एसी, हर जगह एसी चाहिए, हर जगह फैन चाहिए। क्या बना रखा है अपने आप को हमने? हाँ, तो शायद इतना हार्ड वर्क कोई करता है तो शायद ये दो चीजें पाचन हो सकती है, मगर हार्ड वर्क किसी का नहीं। बारीक खुराक है, दूध और दूध से बनी कोई भी चीज ये हल्का आहार नहीं है, हैवी खुराक है। हमारी खुराक न होने की वजह से पूरा पाचन नहीं होता है।
हम जो दूध पी के बड़े हुए हैं, हमारी माँ का दूध 0 माइनस फैट का है, ये 8-10 फैट से कम फैट का नहीं हो सकता ये दूध। हमारा इंजन इतने ही फैट का दूध का पाचन करने वाला ऊपर वाले ने बनाया है। जो दूध पाचन करने की ग्रंथि है वो माँ के दूध के पाचन करने की ही कैपेसिटी वाली बनाई है। और जब तक दूध पर रहते हैं तब तक वो ग्रंथि काम करती है। जैसे माँ का दूध खत्म हुआ नहीं कि ये ग्रंथि ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और हम पराई माँ का दूध पीने लगते हैं। दूध के बारे में काफी कुछ बताया है, आगे नहीं जाऊंगा। हैवी खुराक है, चिकना खुराक है, उसका जो मल बनता है वो भी चिकना बनता है और हमारी आंतों में जहां जहां जगह मिलती है वहां वो चिपक जाता है। आंतें बहुत लंबी है, दोनों आंतें मिलकर 37 फीट दोनों आंतें मिलकर है। जहां जहां जगह मिल गई वहां भी चिपक जाते हैं। हमारी आंतों के साथ हमारी बॉडी के 71 पॉइंट्स जुड़े हैं। 71 हमारी बॉडी के जिस पॉइंट के पास मल चिपका वहां ब्लॉकेज, सर्कुलेशन बंद हो गया या कम हो गया, जिसे हम कोई भी रोग का नाम दे सकते हैं। कारण यही है ब्लॉकेज और कोई कारण नहीं। तो ये प्रयोग है, यहां किसी बात की जबरदस्ती नहीं है। जिसको जो भी प्रॉब्लम है आप ये प्रयोग करो। तो मैं बोल रहा हूं कि हजारों रोग हैं और कई थेरापियां भी हैं, मगर जब तक XYZ जो भी रोग है उसकी जड़ में आप नहीं जाओगे तब तक बाहर से चाहे कितना ही इलाज, कितना ही उपाय, कोई भी थेरापी क्यों न करो, वो रोग जड़ में से नहीं जाएगा। ट्रीटमेंट कराते रहोगे तब तक आपको ठीक लगेगा। ट्रीटमेंट कराते रहोगे, दवाई लेते रहोगे। ये अलग अलग विधियां जो है एलोपैथी में, आयुर्वेद में, योग, जो भी है कोई भी है, करते रहो, जड़ में से कोई रोग नहीं जाएगा। क्योंकि कोई थेरापी रोगों की जड़ में नहीं गई है। ये कोई थेरापी नहीं है। न्यू डाइट सिस्टम कोई थेरापी नहीं है। यहां किसी का कोई इलाज करवाया, आपसे कोई इलाज, साथक जो बैठे हैं क्या इलाज करवाया? बस यहां तो बैठे बैठे सुनते हैं और खाते हैं, सुनते हैं खाते हैं, न योग कराते हैं न कोई एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं करवाते हैं, बस खिलाते हैं और बातें करते हैं। हाँ, इतना ही करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं करवाते। फिर भी सबकी दवाइयां बंद है। तो ये कोई थेरापी नहीं है। यहाँ कोई कसरत नहीं करवाई जाती है, न कोई योग करवाया जाता है, कुछ भी नहीं। क्यों? ये सिस्टम ने रोगों की जड़ को पकड़ लिया, रोगों की जड़ को पकड़ लिया। नेचुरोपैथी ने पकड़ा है, मैं बोलूंगा नेचुरोपैथी ने पकड़ा है। रोगों की जड़, शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य, ये नेचुरोपैथी ने बोला है। प्रशंसा करनी चाहिए इनकी। मगर इलाज में कुछ और चल रहने की वजह से लोगों को हर रोज ये सब करना पड़ता है। फिर कुछ दिन के बाद लोग वहां से हट जाते हैं, फायदा नहीं होता है तो फिर वहां से हट जाते हैं, वह किसी और थेरापी में जाते हैं। लोग घूमते रहते हैं। नेचुरोपैथी वाला आयुर्वेद में जाएगा, आयुर्वेद वाला नेचुरोपैथी में जाएगा,
जैसे चाय बनाने वाला गन्ना जूस पिएगा, गन्ना जूस बनाने वाला चाय पिएगा। हाँ, एलोपैथी वाले नेचुरोपैथी में जाएंगे, सब इधर उधर घूमते रहते हैं। टेम्पररी फायदा हर जगह पे दिखता है और यहाँ लोगों को परमानेंट फायदा मिल रहा है। कुछ भी करवाया नहीं जाता, कुछ भी दिया नहीं जाता यहाँ से कि ये खाओ वो खाओ, वही खाना दिया जाता है जो आप लोग आज तक घर में खाते आए हो। कौन सी नई चीज यहाँ आपको मिली, कोई बताएगा कि ये चीज हमने यहाँ पहली बार खाई, आज तक घर में नहीं खाई? कोई एक चीज का नाम कोई बता पाएगा जो 4 दिन से यहाँ पे है? हाँ, कोई चीज ऐसी नहीं है यहाँ नहीं कि जो आप घर पे न खाई। वही चीजें यहाँ खिलाते हैं। घर पे खाते थे तो बीमार थे, वही चीज यहाँ खा रहे हैं तो स्वस्थ है। क्या है ये चमत्कार? ये सिस्टम रोगों की जड़ में गई है और रोग को जड़ में से निकाल देती है। टेम्पररी फायदा नहीं, लाइफ टाइम यदि इस सिस्टम से आप जुड़े रहे, लाइफ टाइम आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह पाओगे। लाइफ टाइम कभी कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, कभी। ये 10 साल का हमारा 9 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। इतना कोरोना आया, हमने रसीद नहीं ली है, बल्कि हजारों लोगों को कोरोना में से बाहर निकाला है। घर घर जाके पता चला यहाँ इसको कोरोना है, चले गए हम वहां पास में बैठे हैं, कमरे में साथ में सोए हैं, हमें कोई डर नहीं लगा। कोरोना ने हमें डर भी नहीं किया। हाँ, वैक्सीन नहीं लिया हमने कोरोना का। वहां वैक्सीन बनाने वाले चले गए, ट्रीटमेंट करने वाले चले गए। ये सिस्टम का प्रभाव है, कोई लोग आपको छू ही नहीं सकता। આ જે એપિસોડ છે, આ જે માહિતી છે, એ વિદ્વાનો પોતાના અનુભવના આધારે તપાસીને ચકાસીને પોતાના જે જાત ઉપર અનુભવ થયા તે વર્ણવી રહ્યા છે। અમે એનું રેકમેન્ડેશન નથી કરતા, પરંતુ તમને જો યોગ્ય લાગે તો તમે આ અપનાવો, અથવા તો રૂબરૂ આ બધા વ્યક્તિઓ છે તેમને મળી જુઓ। આગળના એપિસોડ છે તેમાં તેમના નંબર પણ આપણે આપ્યા છે, બધી જ માહિતી આપીએ છીએ। તમે મળી જુઓ, અનુભવી જુઓ અને યોગ્ય લાગે તો અપનાવજો અને તમારી જાત છે તેને ખૂબ જ શુદ્ધ, પવિત્ર અને મુક્ત બનાવો। એ જ એનો હેતુ છે, કારણ કે નવી ભોજન પ્રથા છે તેના દ્વારા અનેક લોકોને લાભ થઈ રહ્યો છે, અનેક લોકો તેનો લાભ લઈ રહ્યા છે। પંડ્યાજી, આ જે એનડીએસની જે સિસ્ટમ છે એ આપ ક્યાં ચલાવી રહ્યા છો, અથવા તો આ કોઈ કોર્સ ચાલે છે, કોઈને ભાગ લેવો હોય તો કોનો સંપર્ક કરે? તમારી થોડી એની વિશેની પ્રચારની માહિતી આપો। અહીંયા કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નથી, કોઈ ટ્રસ્ટ નથી, કોઈ સંસ્થા નથી। આદરણીય બીવી ચૌહાણ સાહેબ આના પ્રણેતા છે। ફક્ત ગુજરાતમાં નહીં, ગુજરાત બહાર, ઓલ ઇન્ડિયામાં, ભારત બહાર, દુનિયાના અનેક દેશોમાં તેઓ પોતે પણ સતત ડે નાઇટ પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે, ફરી રહ્યા છે અને યુટ્યુબના અને મીડિયાના માધ્યમથી આજે લાખો નહીં પણ કરોડો લોકો આની સાથે જોડાયેલા છે। એટલે આને કાંઈ ટીચિંગ માટે કોઈ સંસ્થા કે કોઈ એવી વ્યવસ્થા નથી। શિબિરો યોજાય છે, શિબિરોમાં લોકો આવે છે અને 5 દિવસની, 2 દિવસની, 3 દિવસની, 1 દિવસની, 10 દિવસની પણ અહીંયા શિબિરો થાય છે અને લોકો એનો લાભ લે છે અને દર્દી બનીને આવે છે અને અમે એમ કહી શકીએ કે અહીંથી જાય છે ત્યારે ડૉક્ટર બનીને જાય છે। વાહ વાહ। પંડ્યાજી, હવે કોઈ માહિતી એવી હોય કે જે આપ લોકોને જણાવતા, કંઈ વિશેષ માહિતી હોય તો જણાવો। સૌ દેશવાસીઓને, જે લોકો મને સાંભળી રહ્યા છે, બધાને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે જે કંઈ તકલીફ હોય, XYZ જે કંઈ તકલીફ હોય, એમાંથી જો સંપૂર્ણપણે બહાર નીકળવું હોય તો આના જેવો ઉત્તમ માર્ગ કોઈ નથી। નવી ભોજન પ્રથા, ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ જેવો ઉત્તમ માર્ગ કોઈ નથી। આને અપનાવો અને આને એ રીતે અપનાવો કે આને લાઈફ સ્ટાઈલ બનાવી લો। આને કોઈ ઈલાજ
તરીકે તમે ન સ્વીકારશો, ઉપચાર તરીકે ન સ્વીકારશો, કોઈ થેરાપી તરીકે ન સ્વીકારશો. તપ, સેવા, સુમિરન એક સાધના છે. આ પ્રભુ પ્રાપ્તિનો રસ્તો છે, રોગ ભગાવવાનો રસ્તો છે જ નહીં. પણ પૂરી નિષ્ઠાથી આપણે જો આ રસ્તે ચાલીએ છીએ તો એ રોગ ક્યારે જતા રહેશે એ કોઈને ખબર પણ પડતી નથી. અને પ્રભુ પ્રાપ્તિનો આ રસ્તો છે. આજ નહીં તો કાલે આ ભગવાનને અહીંયા આવવું પડશે પૂછવા માટે. કોઈ બહુ સરસ કહ્યું છે, ખુદી કો કર બુલંદ ઇતના, ખુદી કો કર બુલંદ ઇતના, ખુદા બંદે સે પૂછે બતા તેરી રજા ક્યાં હૈ. તો અહીંયા એ પ્રભુ પ્રાપ્તિનો આ રસ્તો છે. જાતે પ્રયોગ કરો અને તમે જુઓ અનેક સ્તરે અહીંયા આમાં પરિવર્તન આવે છે. ફક્ત શારીરિક નહીં, માનસિક, ચૈતિક, બૌદ્ધિક, આધ્યાત્મિક, આત્મિક અનેક સ્ટેજ ઉપર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આમાં એટલું બધું પરિવર્તન આવશે. નિજાનંદ, સહજાનંદ, પરમાનંદ, આનંદાનંદ, અખંડાનંદ, તમામ પ્રકારના આનંદોનો અહેસાસ પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને થતો રહેશે. એ જ્યારે આપણે આને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધતા જઈશું, પ્રયોગ કરતા જઈશું, તેમ આપણને ખબર પડશે. હાલ તો લગભગ આપણે બધા ભોજનના પરિવર્તન ઉપર જ ભાર મૂકીએ છીએ, પણ એ એક ગૌણ બાબત છે. જેમ જેમ તમે આગળ વધશો, સેવાનો માર્ગ તમને રસ્તો મળશે. તપ એ ભોજનનો ત્યાગ છે, એના પછી સેવા એ બીજું સ્ટેપ છે. ઓટોમેટિક શું મળે છે અમને, શું મળે છે ગુરુજીને? કોઈ કાંઈ લેતા નથી, છતાં ડે નાઇટ સતત આની સાથે જોડાયેલા છીએ. એક સેવાનો આનંદ અનેરો છે. તપ અને સેવા બે ભળે એટલે સુમિરન ઓટોમેટિક, પરમાત્મા સાથે ઓટોમેટિક એ તાર જોડાઈ જાય છે, તાતો જોડાઈ જાય છે, સંબંધ બંધાઈ જાય છે. પછી કોઈ વાતની ઉણપ રહેતી નથી. પંડ્યાજી આટલી બધી સરસ માહિતી આપી, તો ખાસ આપણે આ જે વાતને વિરામ આપીએ પેલા આપને એક વિનંતી કે કંઈક મનોરંજન વેમાં કંઈક દુહા છંદ લલકારીને આપણે પૂર્ણ કરીએ. આદરણીય ગુરુ ચૌહાણ સાહેબ તો મને એવું કહે છે કે પંડ્યાજી શીઘ્ર કવિ છે. કોઈ પણ વસ્તુને એ તરત જ આને સાથે જોડી દે છે. તો જ્યારે મને આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે તો હું એટલું જ કહી દઉં, કચ્ચા કચ્ચા સબ કહે, કચ્ચા ન સમજે કોઈ, કચ્ચા કચ્ચા સબ કહે, કચ્ચા ન સમજે કોઈ, એક બાર કચ્ચા જ સમજે, દુઃખ કાહે કોઈ. ચૌહાણજી, દુઃખ કાહે કોઈ. વાહ 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 વાહ, બહુ સરસ કબીર વાણીને આપણે નવી ભોજન પ્રથા સાથે જોડીને સરસ મજાનો સાર આપ્યો. પંડ્યાજી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. તમે આ મુલાકાતમાં જોયું તો ખુદ પંડ્યા જે જણાવ્યું તેમની મોટા ભાગની જે સેલરી છે તે આ ટ્રીટમેન્ટ પાછળ, દવા પાછળ, ડૉક્ટરી તપાસમાં ખર્ચાઈ જતી. તો શું આ અનુભવ છે તેમને થયો અને પછી એમને ખ્યાલ આવ્યો કે મારે શું કરવું? તો તેમને આ જે વિદ્યા છે તે અપનાવી અને પોતાના રોગ દૂર કર્યા. અને પછી તેમને દૃઢ વિશ્વાસ આવ્યો કે ના, આ વિદ્યા મારે બધાને આપવી જોઈએ, બધા લોકો સુધી પહોંચાડવી જોઈએ. તો નિસ્વાર્થ ભાવે તેઓ આ કામ કરી રહ્યા છે. તેમની જેમ અનેક લોકો આ કામ કરી રહ્યા છે. આ બધા જ વ્યક્તિઓ છે, તેમને જેટલી જે નમન કરીએ એટલું ઓછું છે. તેમની આ સેવાને બિરદાવવા જેવી છે. આ જ પ્રકારે તેઓ સેવાના કાર્ય કરતા રહે તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ અને તેમનું જીવન મંગળમય બને તેવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ. અરે રસાહાર સે રસયુક્ત બનો, અરે હો જાય બેડા પાર. भाई ये 3 बातें याद रखना है और कुछ नहीं. उठने के बाद 8 घंटा फास्टिंग, 8 घंटा रसाहार करते रहो. सबसे पहले हमारा जो ग्रीन जूस है वो हमारा औषध है, वो लेते रहो. बाद में सीजनेबल जो भी जूसी फ्रूट्स है उसका जूस पीते रहो. हरी सब्जियों का जूस पियो. बस जूस 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 और कुछ नहीं. दांतों को आराम दो. इतने सालों तक दांतों से बहुत कुछ काम लिया है. अब कुछ करता हूँ. मीडिया आधार स्तंभ है. मीडिया जो है वो आधार स्तंभ है. वो चाहे तो एक पल में किसी को आसमान पे बिठा सकते हैं या किसी को
बहुत जल्द नीचे भी ला सकते हैं। पाकिस्तान से एक लेडीज इंडिया में आई, इंडिया से पाकिस्तान गई, दोनों हीरो हो गए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये मीडिया ये सिस्टम को थोड़ा सा कैचअप करे और लोगों तक जन जन तक पहुंचाए। दिन दुख दर्द और दवाई बिना की हमारी ये दुनिया है, जिसमें हम गुरुजी ने करीब 30 साल से एक सेवा का यज्ञ आरंभ किया है, 30 साल से देश और दुनिया में। तो इसी यज्ञ में हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अपनी एक आहुति डाले, तो लोग जन जन तक ये बात जाए, लोग निरोगी रहे। इससे बढ़िया मेरे ख्याल से तो कोई सेवा नहीं है। મિત્રો, આપણે જે સોશિયલ મીડિયાની લિંક આપી છે તેમાં આપ જોડાઈ રહ્યા છો. આપણા જે ઘણા બધા પહેલા એપિસોડ બન્યા છે તેને આપ બિરદાવો છો, આપનું સજેશન આપો છો, એની ખૂબ ખુશી થાય છે. અને આ જ રીતે તમે તમારા જે સજેશન હોય એ ચોક્કસ જણાવજો. આપણે આગળના સમયમાં વધુ વધુ સારા એપિસોડ બને તેવો પ્રયત્ન કરીશું. અને આપ લોકોને જે ટેલિગ્રામની ને વોટ્સઅપની લિંકમાં જે માહિતી મળી રહી છે, અપડેટ મળી રહ્યા છે, તેની આપણે ખુશી થાય છે. તેની અમને પણ ખુશી થાય છે કે તમે આ રીતે જોડાઈ રહ્યા છો. તો આ જ રીતે તમારો સહયોગ આપજો. તો મિત્રો, આ જ રીતે નવા વિચાર સાથે, નવી વાત સાથે ફરી મળીશું.